CBSE Class 6 Geography Chapter 1 Locating Places on the Earth. Latest syllabus. The first section is Introduction. Earth is vast. To locate places on it accurately, we use maps, globes, and coordinates. This chapter explains directions, latitudes, longitudes, time zones, and symbols, helping us understand how to find places on Earth. Section 2 Maps. Definition. A map is a flat, two-dimensional drawing of the Earth's surface or a part of it. Types of maps. Physical maps show natural features like rivers and mountains. Political maps show boundaries, for example, countries and states. Thematic maps show specific theme like rainfall and crops, etc. Components of a map. Title tells what the map shows. Scale shows ratio between map distance and actual distance. Legend or key explains symbols and colors. North arrow indicates direction. Uses. Easy to carry and use. Can show detailed information but may distort shapes and sizes. Section 3 Globes. Definition. A globe is a three-dimensional spherical model of the Earth. Features of globes. Shows accurate shape, size, and location of places. No distortion like maps. Not convenient for detailed study or travel. Difference from maps. In the terms of shape, map is flat and globe is spherical. In terms of accuracy, map may distort size or shape, but a globe shows true to scale and shape. Portability. In terms of portability, map is easy to carry, but globe is bulky. Number 4 Directions. Types. Cardinal directions like north, east, south, west, and intermediate directions like northeast, southwest, southwest, northwest. Tools like compass. Magnetic needle always points north. North arrow helps orient maps. Real life use. Travelers, hikers, and sailors use directions for navigation. Section 5 Latitudes. Definition. Imaginary horizontal lines running east to west around the earth parallel to the equator. Key points. Measured in degrees from 0 degree at the equator to 90 degree at the poles. Northern hemisphere 0 degree to 90 degree north. Southern hemisphere 0 degree to 90 degree south. Important latitudes are equator at 0 degree. It divides Earth into north and south. Tropic of Cancer at 23.5 degree north, northern limit of the tropics. Tropic of Capricorn is the 23.5 degree south, southern limit of the tropics.
Arctic Circle 66.5 degree north is the polar region in the north. Arctic Circle 66.5 degree south is the polar region in the south. Section 6 Longitudes. Definition: imaginary vertical lines running from North Pole to South Pole. Key points: measured in degrees from 0 degree at the prime meridian to 180 degree east or 180 degree west. Divide Earth into eastern and western hemispheres. Important longitudes. Prime meridian at 0 degree passes through Greenwich, England. 180 degree longitude, called the International Date Line (IDL), crossing it changes the date. Section 7 Coordinates. Definition: a combination of latitude and longitude to pinpoint a location. Format: written as latitude or longitude, latitude and longitude using a comma. Then, for example, New Delhi is 28 degree north, 77 degree east. Uses: used in GPS, mapping, navigation, and locating exact places. Section 8 Time Zones. Key concepts: Earth rotates 360 degree in 24 hours, that is 15 degree per hour. Divided into 24 standard time zones. Important terms: GMT, Greenwich Mean Time, time at the prime meridian; IST, Indian Standard Time, based on 82.5 degree east longitude, that is IST is equal to GMT plus 5 hours and 30 minutes. International Date Line (IDL) follows roughly 180 degree longitude, crossing from west to east. Subtract 1 day. Crossing from east to west, add 1 day. Scale. Definition: a scale is the ratio between the distance on the map and the actual distance on the ground. Types. Statement scale: 1 centimeter is equal to 100 kilometers. Linear scale: bar line divided into equal parts to measure distant use. Use helps to calculate real distances. For example, 2 centimeter on a map into 100 kilometer is equal to 200 kilometer. Section 10 Symbols and colors. Purpose: used to represent features on a map. Common symbols are river as blue wavy lines, mountains as brown triangles, roads as red lines, forests as green areas, cities as dots or circles. Legend: box on the map that explains what each symbol or color means. Section 11 Importance of locating places. Navigation helps in traveling, rescue, and transport. Geography: understand continents, oceans, countries. Climate: latitudes define zones: tropical, temperate, polar.
communication and trade. Time zones are essential for coordination, planning, used for urban development, disaster management, etc. Section 12. Key points to remember. Map versus globe. Map is flat and portable. Globe is accurate but bulky. Directions. Use compass and north arrow. Latitude or longitude. Form a grid to locate places. Time zones. 15 degree is equal to 1 hour and IST is GMT plus 5 hours and 30 minutes. Scale helps measure actual distances. Symbols represent features with help of a legend. Section 13. Real world connections. GPS app use coordinates to find locations. Weather reports use latitude to predict climate. International flights use time zones to plan routes. Explorer and navigators use maps and compasses. Tips for students. Use an atlas or globe to practice finding places. Memorize key latitudes and longitudes. Practice using scale to find real distances. Locate your city using coordinates. Check time differences between countries for fun. Common questions for understanding. Why do flat maps distort some areas? Why is IST plus 5:30 GMT? What is the difference between a map and a globe? What is the international date line? And how do coordinates help in locating places? CBSE Class 6 Geography Chapter 1 Locating Places on the Earth. चलिए हम इसको हिंदी में समझते हैं कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हम अलग अलग जगह को कैसे लोकेट कर सकें, कैसे वहाँ पे पहुँच सकें, कैसे पहचान सकें। पहला सेक्शन ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अर्थ जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसमें कोई भी प्लेसेस को लोकेट करना यानी पता लगाना, वहाँ पे पहुँचना और जानना, वो भी एक्यूरेटली जानने के लिए हमें मैप्स, ग्लोब्स और कोऑर्डिनेट्स की बहुत दरकार है। ये जो चैप्टर है ये क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करता है जो हम सीखने वाले हैं कि डायरेक्शंस, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम जोन्स एंड सिंबल्स, ये सब हमें पढ़ाया जाएगा, जो कि हमें हेल्प करेगा कि हम अर्थ के ऊपर कोई भी जगह को कैसे फाइंड कर सके, लोकेट कर सकें। सेक्शन 2 आता है मैप्स। मैप्स किसे कहते हैं? मैप एक फ्लैट 2 डायमेंशनल ड्राइंग होता है जिसमें अर्थ के सरफेस जैसा दिखाई देता है या फिर उसके कोई भी एक पार्ट हो सकता है। ओके, जैसे पूरा का पूरा अर्थ का ड्राइंग आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं किसी सिटी, कोई कंट्री, ऐसे ही होगा। मैप के बहुत तरीके भी हैं, बहुत प्रकार के मैप हैं, 3 प्रकार के। एक है फिज़िकल मैप जो कि नेचुरल फीचर्स जैसे कि रिवर्स और माउंटेन्स को शो करेगा। पॉलिटिकल मैप जो कि बाउंड्री को शो करता है, कोई भी कंट्री और स्टेट्स को हम पहचान लेंगे इसी से। थीमेटिक मैप स्पेसिफिक थीम को शो करेगा, किसी एक टॉपिक को लेके उसी के ऊपर मैप बनाया जाएगा, जैसे रेनफॉल के ऊपर या फिर क्रॉप्स के ऊपर। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप।
मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या और चीज़ें लगते हैं, सब मिलके मैप बनता है। उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक है टाइटल, जो कि मैप का टाइटल बताता है कि मैप किसके बारे में है और क्या दिखाता है। फिर आता है नंबर 2 पे स्केल। स्केल का मतलब यहाँ पे रेशियो बताया जाएगा कि एक्चुअली में इसका एक जगह से दूसरी जगह पे कितना डिस्टेंस है मैप के अंदर और एक्चुअल जगह पे। तो ये है रेशियो, इन दोनों के बीच के रेशियो को दिखाता है स्केल। लेजेंड और की, ये क्या है? ये कुछ सिंबल्स और कलर्स जो भी उसमें यूज किए गए हैं उसका एक छोटा सा लिस्ट वहाँ पे बनाया गया है। नॉर्थ एरो, नॉर्थ एरो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और नॉर्थ हमें पता चल जाएगा तो बाकी डायरेक्शन हम ऐसे ही पता लगा लेंगे कि नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, फिर नॉर्थ और साउथ के बीच में नॉर्थ को फेस करेंगे तो राइट साइड हमारा होगा ईस्ट, फिर होगा लेफ़्ट साइड वेस्ट। इसी तरीके से हम उसको पहचान लेंगे। अच्छा, इसके क्या क्या यूज़ है मैप के, कि इसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी बना सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं या फिर खुद की यूज़ के लिए इसको रख सकते हैं। बट इसमें क्या होगा कि ये शेप और साइज़ जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, कि पोल के पास अगर जाए तो वहाँ पे एक्चुअल साइज़ और शेप जिस जगह का जो होगा वो हमें मैप में दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा गड़बड़ वहाँ पे हो सकता है। सेक्शन 3 में हम देखेंगे ग्लोब्स के बारे में। ग्लोब्स का डेफिनेशन है कि ग्लोब एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का, एक गोलाकार मॉडल है। 3 डायमेंशन हमें उसमें दिखाई देंगे। ओके, ऊपर नीचे और साइड 3 तरीके से हमें दिखाई देंगे। फिर आता है फीचर्स, कि ग्लोब के क्या क्या फीचर्स हैं, कि ये किसी भी जगह की, किसी भी लोकेशन की शेप और साइज़ को दिखाता है बहुत एक्यूरेटली, और कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता मैप की जैसे। और ये स्टडी करने के लिए, डिटेल्ड स्टडी या फिर ट्रैवल करने के लिए भी ये कन्वीनियंट नहीं है, जो कि मैप है ये उसमें कन्वीनियंट नहीं है। कहाँ पे कैरी करके लेके जाएंगे आप एक ग्लोब को। सो मैप से ग्लोब कितना कुछ डिफरेंट है वो देखते हैं। शेप के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैप फ्लैट होता है और ग्लोब जो है वो स्फेरिकल होता है। और एक्यूरेसी के हिसाब से कौन कितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, तो इसमें मैप जो है वो थोड़ा सा साइज़ और शेप का डिस्टॉर्शन वहाँ पे आता है, गड़बड़ी। और ग्लोब में देखा जाए तो एकदम शेप और स्केल एकदम परफेक्ट होता है यहाँ पे। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो मैप को हम कैरी करके ले सकते हैं किसी भी जगह पे, पर ग्लोब को लेना, हालांकि ले सकते हैं पर काफ़ी बल्की है और बहुत जगह ये ले लेगा। फिर सेक्शन 4 में आते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होते हैं? कोई भी जगह को जाने के लिए जो पाथ होता है उसे हम डायरेक्शन कहते हैं, उसी दिशा से हम चलेंगे। सो यहाँ पे 2 तरह के डायरेक्शन हमें यूज़ करेंगे, एक है कार्डिनल और दूसरा है इंटरमीडिएट। कार्डिनल हम 4 को कहते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो कि हमारी प्राइमरी डायरेक्शन है, ये पहले ये आते हैं। फिर इन सब के बीच में जो निकलते हैं उनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से एकदम मिडिल में से जो निकलेगा वो वाला डायरेक्शन जो दिखाएगा वो होता है इंटरमीडिएट। ठीक इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर होता है टूल्स। क्या क्या टूल्स हमें चाहिए? हमें चाहिए एक कंपास और फिर नॉर्थ एरो।
कंपास जो है, कंपास के पास एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ दिशा दिखाएगा, वो किसी और की तरफ नहीं जाएगा। ये साइंस में आप लोग पढ़ेंगे। और नॉर्थ एरो जो होता है वो ओरिएंट मैप्स को हेल्प करता है कि उसमें दिखाया जाएगा कि नॉर्थ किस तरफ है, उसी हिसाब से आप पता लगा लेंगे। रियल लाइफ में कुछ यूज होता है क्या? हाँ, रियल लाइफ में भी यूज होता है कि ट्रैवलर्स, हाइकर्स और जितने सारे सेलर्स होते हैं वो नेविगेशन करने के लिए, पता लगाने के लिए डायरेक्शंस का, ये डायरेक्शन लेके जाते हैं और कंपास यूज़ करते हैं। फिर आता है सेक्शन 5 लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड क्या है कि ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो कि ईस्ट वेस्ट पे रन होते हैं और पूरे के पूरे अर्थ के चारों तरफ ये गिराया जाता है और ये इक्वेटर के एकदम पैरेलल गिराए जाते हैं। ओके, ऐसे ही लाइन गिरते रहते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि इसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं, जो कि इक्वेटर है 0 डिग्री, और हम जितना ऊपर, इक्वेटर से ऊपर या नीचे जिधर भी जाए, 1-1 डिग्री बढ़ते हुए चलते जाते हैं पोल्स तक। पोल में जाके 90 डिग्री वो होता है, तो दोनों पोल पे 90 डिग्री। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर, बीच में इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर अगर जाएं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ कहा जाएगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ कहा जाएगा। वो नॉर्थ और ये साउथ। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स को हम याद रखेंगे। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, जो अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ के हिसाब से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, जो कि ट्रॉपिक्स के नॉर्दर्न लिमिट को दिखाता है या फिर बाउंड्री को दिखाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे है, जो ट्रॉपिक के साउदर्न लिमिट को दिखाता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, जो कि नॉर्थ के पोलर रीजन को दिखाता है, वहाँ से शुरू होता है। और अंटार्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ है, जो कि साउथ पोलर रीजन को दिखाता है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 6 में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं कि ये भी एक इमेजिनरी लाइन होते हैं, पर ये वर्टिकल होते हैं। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होते हैं, पर ये वर्टिकल लाइंस होते हैं, ये भी गिरे होते हैं, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जॉइंट करते हैं। इस तरीके से वो लाइन गिरे होते हैं, जो कि पूरे के पूरे अर्थ के चारों तरफ गिरे होते हैं। की पॉइंट्स क्या है इसमें कि इनको भी डिग्री में मेजर किया जाता है, पर ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही होते हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में होते हैं, और ऐसे करते करते 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होते हैं। ये याद रखनी चीज़ें हैं, वो 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। और इसी तरीके से ये भी अर्थ को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 0 डिग्री के दोनों तरफ, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए, कुछ बहुत ज़रूरी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। एक होते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री, ये ग्रीनविच इंग्लैंड में ये पास करते हैं। वहाँ पे जितना टाइम होगा उसी हिसाब से पूरा देखा जाएगा, और वहाँ से ही 0 डिग्री से शुरुआत करके उसके लेफ़्ट की तरफ और उसके राइट की तरफ लाइन गिरते चले जाते हैं। और ऐसा करते करते जब 180 डिग्री होता है, इसका एकदम ऑपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
तो वो जब होता है तो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्रॉसिंग इट चेंजेस द डेट। तो इसको अगर हम पार करते हैं तो फिर हमारा डेट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये 24 घंटे जो होते हैं एक अर्थ को चाहिए पूरा का पूरा रिवोल्यूशन रोटेशन, तो एक दिन पूरा हो जाता है, डेट चेंज कर लेना चाहिए। सेक्शन 7 में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉम्बिनेशन होगा वो उधर से भी लाइन गिरेंगे और इधर से भी लाइन गिरेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। ये जब गिरेंगे तो आपस में मिलेंगे, तो ये एक नेट के जैसा दिखाई देगा, एक जाल जैसा दिखाई देगा। एक इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम कोई भी लोकेशन का पिन पॉइंट पकड़ सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं उस जगह को। ओके, हम इसे कैसे लिखेंगे? लैटिट्यूड फिर लॉन्गिट्यूड। जैसे कि मान लो न्यू दिल्ली का लोकेशन अगर हम पता लगाएंगे तो क्या है कि 28 डिग्री नॉर्थ फिर 77 डिग्री ईस्ट, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वही वाला पॉइंट न्यू दिल्ली होगा। तो कोई भी आदमी इसे आराम से पता लगा लेगा अगर उसके पास मैप या ग्लोब होगा। चलिए, इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है कोऑर्डिनेट्स का? कि इनको GPS मैपिंग और नेविगेशन और कोई एग्जैक्ट प्लेस को लोकेट करने के लिए यूज होता है। आजकल जो हम GPS को यूज़ करते हैं, मैप, गूगल मैप्स वगैरह, उसमें हम यूज़ करते हैं और कहाँ पे हैं हमारी लोकेशन कैसे पता चल जाता है, उसमें भी आराम से आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। चलिए, अब हम देखने वाले हैं टाइम जोन्स। टाइम जोन क्या होता है कि हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करता है और उसको टाइम लगता है 24 घंटे, यानी कि एक दिन। अगर 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमता है तो इसको डिवाइड करने पे 15 डिग्री होता है। मान लो एक आवर का कितना होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट होता है। इसी तरीके से 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स बनाए गए हैं। ओके, जो कि हर घंटे के हिसाब से 15 डिग्री घूमता हुआ वो जाएगा और हर जगह का टाइम अलग अलग ही दिखाया जाएगा। कहीं पे रात होगा तो कहीं पे दिन होगा। पूरी अर्थ पे हर जगह सेम टाइम नहीं होता। चलिए, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसे GMT कहा जाता है। जो हमने थोड़े पहले पढ़ा लॉन्गिट्यूड में कि 0 डिग्री जहाँ से शुरू होता है वो टाइम उसी हिसाब से दिखाया जाता है। तो ग्रीनविच इंग्लैंड में ये जगह है। IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हमारा जो IST है, जिसको इंडियन टाइम इंडिया उसको फॉलो करता है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम मानते हैं। वो उसी लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम होगा उसी हिसाब से हम उसको मानते हैं। और ये दूसरी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि GMT में जितना टाइम होगा उसमें हम 5:30 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा टाइम। तो हमें याद रखनी चाहिए कि GMT में हमें 5.5 घंटे ऐड करने होंगे, फिर जाके हमें हमारी टाइम मिल सकता है।
ये एक ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन। ये क्या होता है? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि फॉलोज रफली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे आइडियल यानी कि प्राइम मेरिडियन का माने 0 डिग्री का एकदम उल्टा। ओके, सो वहाँ पे 180 डिग्री होता है। क्रॉसिंग वेस्ट टू ईस्ट, अगर आप जाएंगे, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे 180 डिग्री को पार करते हुए आइडियल को, तो आपको एक दिन घटाना पड़ेगा। ओके, कैलेंडर में एक दिन सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और आइडियल को पार कर लिया, तो वहाँ पे एक दिन आपको बढ़ाना है। ओके, आप अगले दिन में पहुँच गए और पीछे वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर गए तो एक दिन पीछे पहुँच गए। ओके, को टाइम मशीन की तरह लगेगा ये। फिर आता है स्केल। स्केल क्या है? स्केल जो है वो एक रेशियो होता है किसके बीच के मैप में डिस्टेंस क्या है और एक्चुअल ग्राउंड पे डिस्टेंस क्या है, उन दोनों के बीच एक रेशियो बनाया जाता है। ओके, उसको हम स्केल कहते हैं। देखो कितने तरह के स्केल होते हैं। स्केल 2 तरह के होते हैं। एक होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसको हम स्टेटमेंट स्केल कहते हैं। मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर का होगा वो एक्चुअल में 100 किलोमीटर का जगह होगा। ओके, लिनियर स्केल क्या होता है कि बार लाइन होते हैं जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ओके, लिनियर। फिर इसके यूज़ क्या है? यह हमें रियल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। मान लो 2 सेंटीमीटर की कोई जगह मेजर किया हमने मैप के ऊपर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर। तो फिर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर है तो फिर वो जगह का लेंथ क्या होगा या फिर विड्थ क्या होगा मेज़रमेंट के 200 किलोमीटर। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। देखिए उसमें हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, कोई कोई मैप में ये चीज़ें बढ़ती घटती रहती है। आपको वो स्केल देखना पड़ेगा, फिर हिसाब करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है, पर हर मैप में इसी तरीके का रेशियो नहीं होता। ओके, सब अलग अलग होता है। फिर आता है सिंबल्स एंड कलर्स। देखो सिंबल और कलर्स की क्या ज़रूरत है मैप में? ज़रूरत ये है कि हम जो है वो मैप के ऊपर कोई अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, रिवर को दिखाना है तो क्या होगा? ब्लू वेवी लाइंस को दिखाओ, रिवर पता चल जाएगा। माउंटेन्स को दिखाना है तो ब्राउन ट्राइंगल्स दिखाइए। रोड दिखाना है तो रेड लाइंस दिखाइए। फॉरेस्ट दिखाना है तो ग्रीन एरिया बना दीजिए। सिटी दिखाना है तो डॉट्स बनाओ या फिर सर्कल्स बनाओ। इसी तरीके के कुछ सिंबल और कलर को यूज़ करके हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बुक में हैं सिंबल से रिलेटेड, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? लेजेंड एक मैप के ऊपर रहने वाला, मैप में रहने वाला एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये अलग अलग सिंबल और कलर रहता है और उसका मतलब क्या होता है वो वहाँ पे लिखा होता है। ओके, सो आप कोई भी सिंबल कोई भी मतलब के लिए ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही पर्टिकुलर वही दिखाए। आप कुछ भी दिखा सकते हैं, पर उसको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा वही लेजेंड में। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस।
देखो, कोई भी चीज़, कोई भी जगह को लोकेट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। पहले तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं, आपको याद रखने चाहिए। पहला है नेविगेशन, हमें किसी भी जगह पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पहुँचने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। ज्योग्राफी के लिए ज़रूरत है, कैसे कि हम कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और कंट्रीज़ को पहचान सके, समझ सके। फिर क्लाइमेट के लिए भी ज़रूरी है। कैसे पूछेंगे आप, कैसे कि वहाँ पे आप उसको क्लाइमेट पता लगा सकते हैं। उस क्लाइमेट में लैटिट्यूड्स, डिफाइन जोन्स, 1-2 ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, ये सब जगह जानने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, तो आप कम्युनिकेशन, ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि टाइम जोन्स तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर अलग अलग टाइम जोन होगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, पता होगा तभी तो करेंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से टाइम पकड़ लेंगे, उनका टाइम अलग हो जाएगा। हर देश का अलग अलग होता है। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग के हिसाब से अगर अर्बन डेवलपमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। जैसे जैसे करके हम आगे जाएंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखने लायक है, उन सब को आप पढ़िए और इसको याद रखिए जो हमने अभी तक पढ़ा। फिर रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, और स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स भी दी गई है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं। इन सब को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारा क्लास, और अगर कुछ इसमें समझ में ना आए या फिर कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास 6 ज्योग्राफी SST चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थात अर्थ उपरे आमे केमती जगह गुड़ लोकेट करवा, प्लेस गुड़ा लोकेट करवा। फर्स्ट आम ए देखार अच्छी इंट्रोडक्शन। कौन ना, अर्थ हूँ गोटे बहुत ही भास्ट एरिया, बहुत ही बड़ एरिया, तेणु ताकू तारी उपर यदि एक्यूरेटली आमको प्लेसेस गुड़ा लोकेट करा पड़ो, ताले आमको यूज करा पड़ो बहुत गुड़े जिनस, जमती कि मैप्स, ग्लोब्स, कोऑर्डिनेट्स। तो तुमने भावुव जे एगुड़ा सब कौन, ता आम आगू ये चैप्टर ही देखार अच्छे। सो दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स डायरेक्शन। तो ये चैप्टर में आमको डायरेक्शंस, लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, टाइम जोन्स, सिंबल्स, ये सब गुड़ाक आमको हेल्प करती अंडरस्टैंड करिवारे, बुझीबारे जे अर्थ उपर आम गोटे जगह को, गोटे प्लेस को केमिति फाइंड आउट करवा, से जगह केमिति पहुँचवा, बुझला तो लोकेट करिवार। सेकेंड सेक्शन में दिखाई मैप विषय। तो मैप कौन, आम देखले जो मैप, ग्लोब्स आउ कोऑर्डिनेट्स दरकार ये गुड़ाक। तो मेनली ये 3टा जिनस ही ये अच्छी, या नहीं ही सब हो। तो मैप कौन, मैप डेफिनेशन ये दिगला जे मैप हूँ गोटे बहुत ही फ्लैट 2 डायमेंशनल, माने लेंथ आउ ब्रेथ अच्छी है, हाइट यार किसी ना। तो मैंने मैथ रे पढ़ी 2 डायमेंशनल ड्राइंग गोटे, यहाँ गोटे पेपर ऊपर थी मैप कराई, अर्थर सरफेस गोटे देखेब, बा जेकोणी छोट जगह हो, बड़ जगह हो, जी तुम देखा कथा ये शो कर। तो मैप्र टाइप अच्छी, गोटे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो पॉलिटिकल जो फिजिकल मैप अच्छी ये अर्थर फिजिक्स को देखेब, जमीक रिभर कोर्ट रहा, माउंटेन कोर्ट्स रहा, जिन सब नेचुरल फीचर्स गुड़ाक जो देखा जाए से गुड़ाक आम देखापी फिजिकल मैप ताक कह। पॉलिटिकल मैप कौन, आम जो पॉलिटिकली जो बाउंड्री गुड़ा बनईचे, जमीक कंट्रीज, स्टेट्स
है तो पॉलिटिकली एमाने सब डिवाइड होकर अच्छा बाउंड्री बन निजे मनीष तक बन नेचर रे किसी नहीं। तापर आसला थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप रे कौन हम ना गोटे थीम को लेकिन से प्रोजेक्ट कराई ना स्पेसिफिक थीम जमीक रेनफॉल कौटी अधिक कम ये सब को देखापी गोटे कलर यूज करके जमी कर तो केवल रेनफॉल विषय जना पड़ो आ कि सेमती क्रॉप्स को जगार हो कौन क्रॉप्स हो सेगुड़ा केवल देखा आ कि जना पड़ो तेणु ये गोटे गोटे सिंपल थीम को लेकिन हो। अच्छा मैप्र कौन कौन कंपोनेंट सब अच्छी मैप्र 4टा कंपोनेंट्स अच्छी गोटे है टाइटल रे मैप क्या विषय कौन कहूँ देन आसला स्केल। स्केल हूँ गोटे रेशियो माने गोटे मेजरमेंट गोटे रेशियो मैप्र डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस बुझल तो तेणु एक्चुअल रे अर्थ उपर गोटे जगह आ गोटे जगह डिस्टेंस केते आ मैप ओरे केते देखा ये दुटा जगर रेशियो को कहुए स्केल। लेजेंड आउ की एगुड़ा कौन ना एगुड़ा हूँ सिंबल आउ कलर को ये एक्सप्लेन करियो है गोटे छोटिया बॉक्सटे मैप ऊपर लिखाई थो। देन आसला नॉर्थ आरो। नॉर्थ आरो माने गोटे ऊपर आड़ को गोटे कंपास भाया गोटे नॉर्थ आरो थी लिटिल बिट माने ट्रायंगल भाया देखा जाऊ आरो जमी आरो कहुए तीर भाया थी नॉर्थ मैंने जना पड़े नॉर्थ डायरेक्शन कौ आड़ को थाए हम सदा ऊपर को ही थाए नॉर्थ डायरेक्शन से भाया थी तो बाकी सब मेजरमेंट तुम लगे पार जे बाकी डायरेक्शन गुड़ा सब कौपटे है नॉर्थ उल्टा हम कौन अपोजिट रे साउथ राइट साइड है ईस्ट आउ लेफ्ट साइड होगला कौटा वेस्ट। हाँ यही प्रकार देन यार यूज कौन कौन पे मैप कौन आम यूज होते इजी टू कैरी एंड यूज आम जेको जगह नहीं पार आराम से यूज करा को जगह आम हजिजानी लोकेट कर आउ ए डिटेल्ड इनफॉरमेशन सब ए शो करी हबो जोटा कि किंतु शेप आउ साइज एक्चुअल जोटा अर्थ उपर थाए सेटा टिके डिस्टर्ट हम पोल आड़ गला बेले पोल्स गुड़ा देखला बेले नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल से गुड़ाक ठीक रे एगुड़ा जना पड़ोनी है तो। देन आसला ग्लोब्स। ग्लोब्स कौन ना ग्लोब हूँ गोटे 3 डायमेंशनल यार हाइट अच्छी टोटाल पूरा गोल जमती अर्थ देखा से भाया ही एकदम गोल सत्यमती अर्थ थुआई सेम जना पड़ो देख सब समस्ते ये स्पेरिकल गोल है कि गोटे अर्थर छोट मॉडल बुझल तो। फीचर कौन यार जे ये एक्यूरेट शेप आउ साइज देखे हे प्लेसेस है तो जोटा कि मैप रे आमको देखा जाना था एक्यूरेट देखे हो आओ एथरे मैप भाया कौन सी डिस्टर्शन ना कौन सी असुविधा ना माप एपट सेपट ना बुझी। देन आसला किंतु डिटेल्ड स्टडी करने ट्रैवल करने ये कन्वीनियंट नो या डिटेलिंग आसोनी केड़ा बड़ तुम्हें ग्लोब नब डिटेल देखापी अति छोटे भर छोट देश गुड़ा थी तेना खाली जना पड़ो जे यहाँ कौ कंट्री से कौ कंट्री ये खाली देखिपार अधिक आउ कि ना जोटा कि मैप्रे हो पार मैप्रे तुम जिते डिटेल को जापर बुझेगा। डिफरेंस फ्रॉम मैप ये मैप टू केमती अलग ग्लोब देख आम कि फीचर नवा देख फीचर जदि आम शेप कथा देखा ताले मैप हूँ फ्लैट ग्लोब है स्पेरिकल। जदि एक्यूरेसी कथा कहवा कि केते ठीक जिनस जनाऊँगी ताले साइज आ शेप को लेकिन डिस्टर्ट आसीपारे मैप रे बट ग्लोब रे ये एकदम स्केल आउ शेप को लेकिन एकदम ट्रू एकदम परफेक्ट। अच्छा मैप रे जदि हम देखा तो तार पोर्टेबिलिटी गोटे जगह अन्य जगह को नबार सुविधा कौन अच्छी ना इजी टू कैरी मैप को आम आराम से नहीं पार किंतु ग्लोब बहुत ही बल्कि जो बल्कि हवा जो एते ओजनिया हो पारे बड़ हो पारे जोटा कि नबा एते कैरी करवा इजी नुह है तो प्रोब्लेम हो पारे। देन आसला डायरेक्शन विषय में देखा
डिरेक्शंस कौन आम जाचे जे दिग को कह जाए डिरेक्शंस बुझेगा तो कौ दिगरे कौन अच्छे बोली जमी आम नॉर्थ डिरेक्शन कथा है कहले सो डिरेक्शन टाइप्स अच्छी दीटा टाइप अच्छी गोटे है कार्डिनल आ गोटे इंटरमीडिएट कार्डिनल गुड़ाक हूँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारिटा और एम मझीरे जो आउ चार्टा बाहर ताकू कह जाए इंटरमीडिएट डिरेक्शन जमीक नॉर्थ आउ ईस्ट मझीरे जोटा बाहरला सेटा नॉर्थ ईस्ट एकदम सामान मझीरे साउथ आउ ईस्ट मझीरे साउथ ईस्ट से भाया साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बुझे ना किंतु नॉर्थ आउ साउथ रो नाटा आग रही ईस्ट आउ वेस्ट रो ना रहा मन रख आम ईस्ट साउथ कहीपर टूल्स टूल्स कौन कौन दरकार ना कंपास और नॉर्थ आरो तेणु आमको कंपास दरकार हम जो कंपास अर्थ मैग्नेटिक निडल सदा बेले नॉर्थ आड़ को पॉइंट करके थी आम ताकू गोटे यूज करवा आउ नॉर्थ आरोटार जो थी से नॉर्थ आड़ को ही देखो सदा बेले बुझे तो तेणु मैप सदा बेले ऊपर पटे ही नॉर्थ थी सदा बेले देखियो रियल लाइफ यूज प्रकृति किसी कम आसूची आमर आसूची ट्रावेलर्स हाइकर्स सेलर्स बुझेगा ये माने समस्ते डिरेक्शन जानापी जो से नेविगेशन करती गोटे जगह अन्य जगह जाती जो डिरेक्शन जानापी बहुत यूज रे आसे ये बुझे आ शिक्षा को पड़ो टे देन आसला लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स कौन रे भाई लैटिट्यूड्स किसी देखला भाया जिनस सेमती किसी एक्चुअल ना यहाँ गोटे इमेजिनरी जिनस बुझे तो होराइजोंटाल इमेजिनरी लाइन पड़ी होराइजोंटाल पड़ी बुझला ईस्ट वेस्ट कनेक्ट करुच्ची अर्थर चारिपट जगह चारिआडे बुझे तेणु पार्लाल टू द इक्वेटर इक्वेटर जानते समस्ते बुक रे भी देखिपर पिक्चर गुड़ाक तेणु इक्वेटर जो अच्छी एकदम मझीरे जाइए अर्थर बुझे तो तेणु ताकू पार्लाल करिकी समान करिकी ऊपर आड़ को से इक्वेटर तल आड़ को एमती लंबी तेणु जो मझीरे एकदम रोचे से 0 डिग्री है की पॉइंट्स भितर देख लैटिट्यूड कौटी अच्छी या आम डिग्री हिसाब से मेजर करवा 0 डिग्री है इक्वेटरटा एकदम मझीटा तारी ऊपर आड़ को जीवा आम एकदम पोल्स जाए नॉर्थ पोल से 90 डिग्री जाए जीव गोटे गोटे काउंट कर चलो 1 डिग्री 2 डिग्री एमती करी ऊपर को चलो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ताले तुमको 0 रु 90 डिग्री नॉर्थ जाए जीवा को मिलो एकदम लास्ट है 90 डिग्री नॉर्थ तापर को किसी ना एटा पॉइंट सेमती इक्वेटर रु तलू तलू आसो तो सदर्न हेमिस्फीयर एटा कह बुझे तो गोटे तरबुज काटिदेले मझर जमती हो जाए 2 खंड से भाया से 2 खंड हो जाए हेमिस्फीयर स्फीयर अधा अधा कह जाए हेमी तो हेमिस्फीयर बुझीगला तो तलू को आस तो साउथ एटा तो साउथ हेमिस्फीयर रे डिग्री पर साउथ लगे नॉर्थ हेमिस्फीयर तो एन लगे तुम जानीज जे कौ स्फीयर कथा कहुच्छी बुझे ना सी 90 डिग्री जाए जीव देन इम्पोर्टाट लैटिट्यूड्स ताले कौन कौन लैटिट्यूड इम्पोर्टाट अच्छी ता विषय आम देखा या मन रखियो भल भाव इक्वेटर है 0 डिग्री ये अर्थ को एग्जाम डिवाइड करुच्ची नॉर्थ हेमिस्फीयर आ साउथ हेमिस्फीयर एक्चुअली डिवाइड करूनी आमको भाविया पड़ो बुझला अधा अधा करदे गारा पकई दूसरी बुझीगला तो लाइन टाणी दूसरी ये सब इमेजिनरी लाइन ही टणाई आम जानापी ना किसी काम ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केते ना 23.5 डिग्री नॉर्थ है नॉर्थ है कैंसर साउथ पट है कैप्रिकॉर्न मन रखियो नॉर्थ पट है कैंसर है ताले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ हेमिस्फीयर रे 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द ट्रॉपिक नॉर्दर्न लिमिट हेट शेष ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा तो 23.5 डिग्री साउथ एटा सदर्न लिमिट ट्रॉपिक
बुझे तो तापर आसला आर्कटिक सर्कल तुम पुणी आउ टे ऊपर को नॉर्थ हेमिस्फीयर आउ टे ऊपर पलैब तो 66.5 डिग्री नॉर्थ गोटे आसो ताको कहुए आर्कटिक सर्कल सी गोटे गोटे मेजर सर्कल एगुड़ा सब मेजर लैटिट्यूड गुड़ाक बुझे पोलार रिजियन यू ही आरंभ हम अत्यधिक ठंडा सेमिति सदर्न हेमिस्फीयर पटे गोटे अच्छी सर्कल ताको कहुए अंटार्कटिक सर्कल सी सेम 66.5 डिग्री साउथ मन रखा किसी गोटे बड़ जिनस नुह है कारण ये मेजरमेंट सब सेम अच्छी 23.5 आउटला 66.5 नॉर्थ पटे कौन ना दिखाई साउथ पटे कौन ना दिया ये खाली मन रखार अच्छे ये साउथ पटे पोलार रिजियन से आरंभ हो बुझे तो वेरी गुड तापर आसला लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन ना लॉन्गिट्यूड है गोटे डेफिनेशन आम देखा ताले सी गोटे इमेजिनरी लाइन्स गुड़ाक ये किंतु वर्टिकली पड़ी आम ए जो 90 डिग्री कथा कहते लैटिट्यूड एमती गार पड़ी पड़ी जो एकदम पोल्स को पलैब रिसेस तो सेठू धरिकी दीटा जाक पोल्स जो जॉइंट हम तरबुजर जमीती दी पटे तार भुंडी पट ऊपर आ तल पट जमी गार गार सब जॉइंट हो ऊपर को तल गारा पड़ी ठीक से ही भाया ये होता है बुझेगा तो तेणु या वर्टिकल लाइन्स कह दीटाक पोल्स को जॉइंट कर एमती करके लाइन गुड़ाक पड़ी नॉर्थ पोल को साउथ पोल जॉइन करुच्ची अच्छा की पॉइंट्स कौन सेम 0 डिग्री सॉरी ये डिग्री रे आम मेजर करवा यार गोटे 0 डिग्री अच्छी जोटा आम प्राइम मेरिडियन बोली कहचे आ ये जेहेतु वर्टिकल लाइन पड़ुची यार आ नॉर्थ साउथ रे किसी काम नहीं ये जो 0 डिग्री अच्छी प्राइम मेरिडियन ये 180 डिग्री ईस्ट आ 180 डिग्री वेस्ट को जाऊँगी है तो ईस्टर्न आ वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बनाऊँगी तेणु ये अर्थ को डिवाइड कर दूची ईस्टर्न आ वेस्टर्न हेमिस्फीयर रे बुझिपार तो वेरी गुड किसी और से पटे जहाँ एपट भी से टिके ना खाली चेंज हो इम्पोर्टाट लॉन्गिट्यूड गुड़े भी अच्छी 0 डिग्री को कहुच्छी प्राइम मेरिडियन एटा इंग्लैंडर ग्रीनविच बोले गोटे जगह अच्छी से ताकू पास करके जाऊँगी बा सेटा को 0 डिग्री बोली मानुंट तेणु सेठी जिते टाइम होताकू नहीं दुनिया गोटे जगार टाइम हम टाइम जोन कथा आगू आम पढ़ा ये पढ़ा से तुम या मन पकेब है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहे आम यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन ताने एपटू ईस्ट पटू जा 180 सर सेपटू ईस्ट पटू आसो एपटू वेस्ट पटू जीव तो जो से मेल हेले 180 जो गोटाक जगार है सेटा को IDL कहुए माने इंटरनेशनल डेट लाइन ताने एठी डेट चेंज हो बुझला केते कौन चेंज हो आम आगू को यही चैप्टर ही पढ़वार अच्छे डेट चेंज हो जो तुम या क्रॉस कर गोटे पटू आ गोटे पटू जो जीव या क्रॉस कर तेणु डेट चेंज हो अच्छा कारण दिन राति चली ना तेणु चेंज हवा पड़ो टाइम फॉलो करा पड़ो गोटे इंटरनेशनल टाइम न रही आमको प्रोब्लेम हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स गुड़ाक अन्य सब जिन गुड़ा कर अच्छा सेक्शन 7 अच्छी कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट कौन ना ए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आम पढ़ीदे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रो जो कॉम्बिनेशन हम एम जो मिसबे जो गार गुड़ा पड़ो या कोऑर्डिनेट कहुए एमाने तले एपटू गार सेपटू गार जो पड़ो सब स्क्वायर गुड़े या बुझीगला तो एमानकर जोड़ा जॉइंट पॉइंट जोड़ा रहा जो मैंने जॉइंट हेबे मिसबे से गुड़ा हूँ गोटे गोटे पिन पॉइंट बुझीगला तो ओके फॉर्मेट कौन फॉर्मेट है या लिखा केमती ना लैटिट्यूड आग तापर लॉन्गिट्यूड लिखा जमीक कि न्यू दिल्ली जदि कोऑर्डिनेशन कहुए ताले केते ना केते लैटिट्यूड रे गारा पड़ी केते लॉन्गिट्यूड भितर से अच्छी कोड जॉइंट है ना 28 डिग्री नॉर्थ पटू पलि आस आ 77 डिग्री ईस्ट पटू पलि आस ये दुईटा जाक जो जॉइंट है सी है न्यू दिल्ली है तो ये आउ कौन सी सेकेंड जिनस डुप्लिकेट किसी हो पारनी
ये एकदम ओरिजिनल ये एड्रेस गुड़ाक आउ एमती 28 डिग्री नॉर्थ आउ 77 डिग्री ईस्ट रे आउ कौनसी जगह ही नहीं बुझीपार ना। नेक्स्ट यूज कौन ना ये कोऑर्डिनेट को यूज करके आम बर्तमान आम स्मार्टफोन रे जीपीएस यूज करि पारुछे सी भी सही काम ही करुछ बुझला। तुम मैंने से गूगल मैप को जाइकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ तार कोऑर्डिनेट्स को एक्टिवेट करि परिबो भितर लेयर्स अंडर रे ऑप्शंस रे लेयर्स अच्छी से तुम देखले मतलब जानीपर। अच्छा जीपीएस पाई मैपिंग पाई नेविगेशन आउ एग्जैक्ट प्लेस गुड़ा लोकेट करने आमर डिफेन्स रे गुड़ाक बहुत यूज होची बुझेला। आउ फ्लाइट ऑटो पायलट ये जो जिनस गुड़ा बर्तमान नुआ नुआ चली बिना ड्राइवर लेस कार जो आम यूज करुचे देखुचे से गुड़ाक जीपीएस बहुत जरूरी नल नहीं एगुड़ा किसी काम हेनी। सेक्शन 8 है टाइम जोन्स। टाइम जोन कौन ना अर्थ रोटेट करुच्ची 360 डिग्री 24 आवर्स टाक लगुच माने टोटाल गोटे रोटेशन हाँपी सकालू आउ गोटे सकाल हाँपी के 24 घंटा तो 24 घंटा माने टोटाल गोटे सर्कल बुलेले के 360 ताले यदि 24 घंटे 360 डिग्री होउची ताले गोटे घंटे केते हम डिवाइड करदे डिवाइड करदेले आमको मिलगला 15 डिग्री ताने गोटे घंटा 15 डिग्री। तेणु से हिसाब रे 360 डिग्री जो निया जाइची टोटाल वर्ल्ड को आमको डिवाइड करा जाइची 24टा टाइम जोन रे स्टैंडर्ड टाइम जोन्स रे बुझीगला। तामाने से गोटे गोटे सेक्शन रे जी आसला सी से टाइम आउ गोटे जदि आउ गोटे 15 डिग्री को तुम डेई पड़ल है से क्रॉस कर पड़ल ताले सेठी आउ गोटे घंटा बढ़ीगला एमती हे बढ़िया कमिवा चली जहाँद्वारा आम टाइम को मैनेज करें। तो से हिसाब रे इंडिया टाइम ताले केते एटा आम आगू बर्तमान देखिए। अच्छा मु आगुरी कही जे जीएमटी अर्थ है ग्रीनविच मीन टाइम। इंग्लैंड रो जो ग्रीनविच अच्छी से धरा जाउची 0 डिग्री बोली आ सेठी जेते टाइम हेथिबो तारी हिसाब रे 15 डिग्री ऐड करी चलिबो नले माइनस करी चलिबो जो पटको जेमिति थिबो हला। तेणु जदि करि चलिबो ताले प्राइम मेरिडियन रो टाइम सेठी जेतिकी से हिसाब रे हमको मिलिबो। देखो फॉर एग्जांपल आईएसटी कथा कहबा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हिसाब रे हम बेस करवा आमर मेजर माने मिडिल पॉइंट होची 82 डिग्री 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है आमर पूरा मझी जगह मझीरू यदि आम भारत को देखा है डिस्टेंस इक्वल ताको आम आईएसटी बोली मानुचे। तेणु ये टाइमटा केमी जाना ना जीएमटी रो जेते टाइम हो से आमको 5.5 घंटा ऐड करदे पड़ो आम ऐड पटे अच्छे बुझल। तो तेणु एथिरे आम ऐड करदेले 5 आवर एंड 30 मिनिट्स आमको मिल जाव आमर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड टोटाल इंटरनेशनल लोक जितक इंटरनेशनल जोड़ी जोड़ी देश रे सी देखुवे इंडियन टाइम माइला माने एटा आसीबो बुझला। स्मार्टफोन गोटे वर्ल्ड क्लॉक अच्छी से क्लॉक अंडर रे ताकू मते तुम देखिले जानी परिबो। अच्छा इंटरनेशनल डेडलाइन रे आईडीएल कथा जो कहते यहाँ फॉलो करुच्ची 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 180 डिग्री जो हम ये सही। अच्छा जदि या पार कर वेस्ट रु ईस्ट पट को तुम जाऊच वेस्ट रो अच्छ जदि हठात यहाँ पार कला माने तुम ईस्ट को गल तेणु तुमको तुमर कैलेंडर हिसाब रे घंटा हिसाब रे तुमको 1 डे माइनस करिया पड़ो नहले भूल भाल हो। सेमती ईस्ट पट जदि वेस्ट पट को आसिल क्रॉस कल ताले एतरे 1 डे एतरे ऐड करदो बुझे तो नहले टाइम सब भूल हो। नेक्स्ट आम देखिबार अच्छी स्केल। स्केल कौन ना ये हूँ आगुरी भी आम जानिले जो गोटे डिस्टेंस मैप रो जो जगह जी एरिया नहीं आउ एक्चुअल रे ग्राउंड उपरे जार तो डिस्टेंस अच्छी ये दुटाकर रेशियो को कह जाए स्केल।
स्केल है दी प्रकार गोटे है स्टेटमेंट स्केल आ गोटे है लिनियर स्केल। स्टेटमेंट स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर बा जेकोसी प्रकार तुम नहीं पार ये तुम किसी भी नहीं पार ए कौन असुविधा ना। बट लिनियर स्केल रे बार लाइन गुड़ा पड़ी जी कि डिवाइड कर इक्वल पार्ट्स है डिस्टेंस को मेजर करने इक्वल पार्ट पड़ी ताको लिनियर लाइन पड़ी बुझे तुम से बुझ। अच्छा यूज कौन ना आमको रियल डिस्टेंस कैलकुलेट करिवारे ये हेल्प करिवो। मनकर आम गोटे मैप देखिले से स्केल अच्छी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तमाने मैप उपरे 1 सेंटीमीटर जी एक्चुअल रे हला ग्राउंड उपरे से जगटा है 100 किलोमीटर। 1 cm हूँ 100 किलोमीटर। तो जदि 2 cm आम जदि मेजर करवा ताले आम केते ताले जानिबा जे एक्चुअल केते जगह हेतिबो एक्चुअल रे से डिस्टेंसटा ना 2 cm हेले 1 cm को जदि 100 है 2 cm को 2 × 100 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर हो गला बुझला। तो एमती आमको हेल्प मिलता है। सिम्बल्स एंड कलर्स। अच्छा केते गोटे सिम्बल आउ कलर मध्य यूज हो यार पर्पस कौन ना किछिटा जगह को आमको देखा आम किछिटा फीचर मैप ऊपर रिप्रेजेंट करिया आमको बड़ा हेल्प होता है। आम बहुत जल्दी ये जिनस गुड़ा जानिबारे हेल्प होता है। जमीक रिभर अच्छी माउंटेन अच्छी या आम देखा बारंबार लिखा दरकार नहीं तेणु किसी गोटे चिन्ह देदेले से होमती कि बहुत गुड़े चिन्ह तुम बुक रे भी अच्छी सिंबल ताकू मन रखिबो। रिभर वाला गोटे ब्लू वेभी लाइन थी माउंटेन्स गोटे ब्राउन ट्रायंगल तुम नहीं पार। रोड पर रेड लाइन्स अच्छी तेणु तुम बुक रे जहाँ जमती दिखाई से पिक्चर गुड़ाक तुम देखिकी मन रख है। तो तापर आसला लेजेंड। लेजेंड कौन ना ये गोटे छोटिया बॉक्सटे मैप उपरे लिखाई गोटे छोटिया बॉक्सटे कराई जो से जहाँ सिंबल दि जाइथिबो से सिंबल रो अर्थटा कौन सेटा ता भीतर लिखाई है। सिंबल रो मीनिंग आउ कलर रो मीनिंग मध्य ता भीतर लिखाई मते ताको लेजेंड बोली कहा जाए। तापर आसला इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस। अच्छा आम लोकेट जो करवा शिखिले एत सब जिनस जानिले और कौन काम कौन है देख यार बहुत प्रकार काम अच्छे किंतु ये 5 टा लिस्ट कराई। गोटे है नेविगेशन आम जी ट्रैवलिंग करुचे रेस्क्यू करुचे ट्रांसपोर्ट करुचे ये हेल्प मिल। जियोग्राफिकली आम देखा ताले आम कॉन्टिनेंट ओशियन कंट्रीज गुड़ा जानिबारे हेल्प हम। क्लाइमेट दृष्टि देखिले लैटिट्यूड को जदि आम देखा ताले आम ट्रॉपिकल टेम्परेट पोलार रीजन को क्लाइमेट केमितिया या जानिबारे आउ चिन्हिबारे मते इजी हम। कम्युनिकेशन आउ ट्रेड विषय कहले टाइम जोन्स गुड़ाक कोऑर्डिनेशन पाई बहुत बहुत एसेंशियल है। अच्छा प्लानिंग हिसाब रे मध्य अर्बन डेवलपमेंट हो डिजास्टर मैनेजमेंट हो एथिरे प्लानिंग करिबारे हमको बहुत हेल्प मिलता है बुझे। तो बर्तमान पे आम एतिकी जानिबा। नेक्स्ट है की पॉइंट्स टू रिमेंबर। एथिरे तमे की पॉइंट्स मन रख जहाँ जहाँ पूरा आम पढ़िले ताको एठी पुणी थरे रिपीट अल्प मात्रा दि जाइए बुझीगला। रियल वर्ल्ड कनेक्शन कथा यदि आम कहवा ये किसी दिखाई या तुम मैंने पढ़ो। स्टूडेंट्स मानक पई किसी टिप्स मध्य मु लिखी ताकू भी पढ़ एवं बहुत भल भाव चैप्टर क्लियर कर बुझीगला। तेणु आम चैनल रे जो वीडियो गुड़ाक पोस्ट करा जाउची जदि तुम मानू से गुड़ा भल लगुची ताले ताको टिके लाइक करदेव कमेंट करिपरिबो शेयर करिपरिबो सांगसाथी मानक सहित कि जो मानक सहित तुम चाहूच ताको शेयर करिपरिबो एवं चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दो। किसी भी डाउट रोची तुम ताको कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबो बुझियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।